Good morning, dear students. I am Abhishek Chaudhary, science educators. Now, today we will take a new chapters and it is a very important chapters of your physics part of your science. आज मैं आपके लिए एक जो न्यू टॉपिक है जिसकी बहुत सारे यूजेस होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो या फिर कोई भी रिलेटिव एग्जाम से होती है, कॉम्पिटिटिव एनटीएससी के एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी ऐसे रिलेटिव एग्जाम देते हो वहाँ, तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है एंड दैट वाज नेम ऑन इज फ्रिक्शन. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द जो हमारे एकेडमिक की बात करें तो चैप्टर्स जो ये होती है मीन्स स्टैंडर्ड 8 में आपको ये चैप्टर्स नंबर 12 फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस वहां पे स्टडी कराई जाएगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी आर गोइंग टू बी नो व्हाट इज फ्रिक्शन. पहला हम ये देखेंगे, स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, है ना. तो फर्स्टली वी विल डिस्क्राइब अबाउट द फ्रिक्शन, है ना. आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द नेम ऑफ फ्रिक्शंस, बट रियली where the how the frictions can be applied, है ना, what's these all things we have been not been discussed. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. Just like here, one object is there. What we will locate? One object is there. Okay. So now how we can locate it? है ना? It is very easy to be located here. Force of friction is the force which opposes the motion. What? Which oppose the motion of an object over a surface. Now, here is a surface of the object, and here the object can be dependent. है ना? These object can be put on this surface. This object can be put on this surface, and this one is object. So, what you will here find out? We are going to find out what is there. We are going to find out the friction, where the frictions can be applied. यहाँ पे friction किस तरह से applied हो रही है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा जो होगा frictions which is oppose the motion, अगर यहाँ पे अगर ये directions में यहाँ पे हो रही है तो that one is applied from such directions, है ना. तो force of friction is the force which oppose the motion of an object over the surface. तो क्या देखा आपने, a ball rolling on ground. एक बॉल है यहाँ पे जो रोलिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे, क्या कर रहे हैं, रोलिंग हो रही है ग्राउंड पे. ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू, धीरे धीरे वो क्लोजली क्या होगा, आपके पास आ जा रही है ना. तो ये बॉल, दिस वन बॉल इज कम्स टू योर प्लेस. तो ये बॉल आपके प्लेस पे आया. अ बॉल रोलिंग ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू और ये फाइनली आपके पास आ रहा है. यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस पोजिशंस. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व देयर, rest due to force friction between the ball and the ground. Okay, rest due to force of friction. यहां पे क्या हो रहा है, रेस्ट. ये जो बॉल हो रही है, ये पार्टिकुलर बॉल जो रेस्ट के पोजीशन में आई, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू बी दिस बॉल कम इन अ रेस्ट पोजीशन, because the ball rolling on the ground gradually slow downs and the force of friction between the ball and the ground, the force of friction between ball and the ground, the force of friction, which one is the force of friction which can be applied where's the ball and the ground. अब यहाँ पे बॉल और ग्राउंड के बीच यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो क्या देखा आपने कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, when we are going to take an example of the any object, and in these situations what we have been seen कि जो there is a friction which can be created with the surface of the object and the object, surface and object, है ना. Just like race due to, if we are stop pedaling bicycle, okay, anyone can starting the bicycle, if we stop a pedaling bicycle, it's gradually slow down. धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप पैडलिंग कर रहे हो, है ना, और अगर आप पैडलिंग को स्लो कर देते हो तो धीरे धीरे क्या देखते हो कि आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो जो आपकी जो बाइसिकल है, वो बाइसिकल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, कम्स टू स्टॉप. Due to the, why it is possible? Due to the force of friction between wheel and the roads. वहां पे wheel जो होते हैं वो और वो रोड के बीच क्या होते हैं, व्हील एंड रोड के बीच वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. मींस ऑब्जेक्ट के सरफेस और जिस सरफेस पे वो वहां पे ऑब्जेक्ट फॉल है, वो दोनों के बीच क्या हो जाता है, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है ना. तो क्या देखा आपने यहाँ पे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कहां पर क्रिएट होता है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में वहां पे क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो स्टूडेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां से क्वेश्चन बाहर आ रहा है कि वेयर द फ्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड. फ्रिक्शंस कौन से एरिया पे अप्लाइड हो रही है, तो फ्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑन द बिटवीन द
सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो सरफेस होता है वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है, एंड दैट्स व्हाई एनी बॉडी व्हिच इज कम इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। और यही रीजन है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो कहां पे, तो रेस्ट के पोजीशन में आती है। नाउ लेट्स अस सी द टू एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज rolling of ball on the ground। तो what we have been seen in this situation कि जब भी कोई बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड पे तो वो रेस्ट के पोजीशन में कब आ रहा है, जब वो बॉल, when the ball and the ground, बॉल और ग्राउंड के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। जब आप अपने पैडलिंग कर रहे हो तो वहां पे कंडीशंस हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, तो फोर्स ऑफ बिटवीन कहां पे, व्हील एंड द रोड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रही है। नाउ वी आर गोइंग टू बी रीजन, देखो फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस, है ना, एनी रफ सरफेस। अगर हम कोई रफ सरफेस की बात कर रहे हैं जहां पे रफ सरफेस हो, प्लेन नहीं हो, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है। क्या होती है, फ्रिक्शन व्हिच इज मोर इन अ रफ सरफेस, वेयर सरफेस इज रफ, friction is more, you see examples। now another one is friction, है ना, where the frictions can be applied, motions, है ना, pushing force, frictions, just like give an example, just like आप example देख रहे हो। first one example is when any object, है ना, when you will push any object, तो what you have been seen in this situation कि force, pushing force and यहां देयर इज फ्रिक्शंस एंड मोशन। अगर यहां पे पार्टिकुलरली कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से अगर यहां पे फोर्स एप्लीकेबल कर रहे हो आप, है ना, यहां से अगर आप फोर्स एप्लीकेबल कर रहे हो तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन यहां पे होगा, फ्रिक्शन, ठीक है ना, और ये मोशंस का डायरेक्शन ये हो जाएगा, मोशंस की डायरेक्शंस ये होती है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस सिचुएशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहां पे कि जो फ्रिक्शन अगर इधर से लग रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मोशंस होता है ना, पहले वाले ऑब्जेक्ट को। सेकंड, आपने रोलिंग बॉल को देख पा रहे हो, है ना, कि वहां बॉल और ग्राउंड के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। थर्ड में आप देख रहे हो बाइसिकल्स वाली कंडीशंस, जैसे आपने स्टॉप किया पैडलिंग वहां भी कंडीशन ऐसे क्रिएट हो रही है ना। तो दीस ऑल आर द एग्जांपल्स वेयर द फ्रिक्शंस कैन बी क्रिएट बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। ओके, which factors which can be affect the frictions, कौन कौन सा factors जो होते हैं वो फ्रिक्शन को affect करते हैं। It is a very important topic also। Friction depend upon two factors, वो basically दो factors पे depend होता है। Okay, first one is nature of the surface in contact, कौन सा surface object के contact में आ रहा है, either rough or polished। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉलिश सरफेस होती है तो वहां पे फ्रिक्शंस की लेवल चेंज होती है, स्मूथ सरफेस होती है तो वहां पे फ्रिक्शंस की लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। तो नेचर्स ऑफ द सरफेस क्या क्या देखना है अपने को, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट मींस जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रही है वो देखना है। स्मूथ ऑफ द सरफेस, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, है ना, किस तरीके से, तो ये चीज देखना है कि फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शंस का उसके two factors है। first one is nature of the surface in contact and second one is how hard the surface press together। फ्रिक्शन इज लेस ऑन अ स्मूथ, ये चीज ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है कहां पे, स्मूथ सरफेस में। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होगा और जो यहाँ पे आपका जो रफ सरफेस होता है वहां पे जो फ्रिक्शंस की कंडीशंस बेस होती है, तो फ्रिक्शन इज लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। कौन से स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शंस क्या होती है, लेस होती है। अब देखो फ्रिक्शन इज मोर इफ सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। ऑब्वियसली कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले लो आप और वहां पे उसके कंपैरेबल में अगर फोर्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस सिचुएशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया ऐसी सिचुएशंस में कि फ्रिक्शंस वहां पे मोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस जो प्रेस है वो हार्डर है। फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन लेस कब होगा, जब नॉट प्रेस हार्डर, जब ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अगर लेस होगा, मिनिमम होगा, तो वहां पे फ्रिक्शंस की लेवल क्या हो जाती है, लेस हो जाता है। क्या होगा, लेस हो जाएगी। और फ्रिक्शंस की मोर कब हो जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट हार्डर होता है। तो हार्डर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हार्डर ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शंस ज्यादा हो जाती है ना। एंड फ्रिक्शन इज लेस इफ द सरफेस आर नॉट प्रेस्ड हार्डर, अगर सरफेस को हार्डर प्रेस नहीं कर रहे हम। अब जस्ट लाइक मैं एग्जांपल मिल दूं आपको, आप एक छोटा सा टेबल ले लो, यू विल टेक अ स्मॉल टेबल एंड यू विल टेक अनदर टेबल्स which is greater weight in the comparable to the first table। आप दो टेबल ले लो, एक की वेट है 10 kg और सेकंड टेबल की वेट है 50 kg, और आप सेकंड जिसकी वेट है 20 kg, आप वो टेबल को आप पुश करो, इजीली क्या होगा, वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली मूवेबल होता है। व्हाई इट इज, बिकॉज फ्रिक्शन इज लेस, वहां पे फ्रिक्शन क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। क्यों, व्हाई इट इज, इफ द सरफेस नॉट प्रेस्ड हार्डर, क्योंकि वहां जो सरफेस है वो हार्डर प्रेस नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई वहां पे क्या होगा कि सरफेस जो होती है वो एरिया का
वो इजीली प्रेस हो जाता है और वहां पे फ्रिक्शन आपको दिखता है, फ्रिक्शनलेस होती है। फ्रिक्शन इज मोर इफ सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर आप फ्रिक्शन ज्यादा कब होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक हार्डर ऑब्जेक्ट ले लो, उसको वहां पे पुट कर दो, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, हार्डर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट सारे अपने को लर्न रखनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट अपने को क्या है, काम आने वाली चीज है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस की कॉज क्या क्या है? फ्रिक्शन इज caused due to the interlocking of irregularities between the two surface, irregularities between the two surface, दो surface के बीच क्या होता है, इंटरलॉकिंग। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरलॉकिंग? आप देखते हो जीप होती है, जीप है ना, वहां पे क्या होता है, इंटरलॉक्ड होता है, इंटरलॉक है ना, एक दूसरे का इंटरलॉक किया होता है। तो इंटरलॉकिंग क्या, इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, जैसे दो सरफेस आपस में कांटेक्ट होता है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल से बोलो आपको कि आप देखते होंगे कि ग्रिप होती है, ग्रिप, ग्रिप में क्या होता है कि इंटरलॉक होता है, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड। तो वहां पे फ्रिक्शंस क्यों होते हैं, और फ्रिक्शंस की वजह से ग्रिप आपका रेगुलेटरीज वर्क कर रहा होता है। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। व्हेनेवर टू सरफेस व्हिच इज कम इन कांटेक्ट, जैसे ही दो सरफेस आपके कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड। फ्रिक्शन क्या होगा वहां पे, कॉज्ड होगा ड्यू टू interlocking of irregularities between the two surface in contact. Whenever smooth surface have minute irregularities, smooth surface में क्या होता है, थोड़ा सा minute irregularities होती है between the two surface. Now rough surface में क्या होगा, large irregularities, rough surface में क्या होती है, larger irregularities between the two surface. तो what you have been seen in this situation, cause of frictions क्या क्या है हमारा, first one is cause is friction, is that friction is caused due to the interlocking of the irregularities. Interlocking की meaning अब आपको clear होगा कि what is the meaning of interlocking, irregularities between the two surface in contact. Smooth surface have minute irregularities, smooth surface के पास क्या है, minute irregularities है between two surface. Rough surface have larger irregularities between the two surface. And now so force of friction is more if the surface are rough. तो obviously मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर सरफेस हमारा रफ है तो फ्रिक्शंस क्या होगा, मैक्सिमम होती है, फ्रिक्शन क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। There are three main type of frictions. First one is static friction, second one is sliding friction, rolling frictions, and how these all frictions can be worked out. Now let's see what is the meaning of static friction. Static frictions की meaning क्या होती है, फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा होता है, जस्ट लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में रखा हुआ है और वहां पे फोर्स एप्लीकेबल कर रहे हो आप, इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग अ फोर्स एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वहां पे क्या होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शंस की बात होती है। जस्ट लाइक आप देखो यहाँ पे कि एक व्हीकल्स है, वो वहां पे स्टोर्ड है, लगी हुई है ना, रेस्ट के पोजीशंस में है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होती है और रेस्ट में ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर जब हम फोर्स एप्लीकेबल करते होते हैं, जब उसके ऊपर हम फोर्स एप्लीकेबल करते हैं और वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक मोशन में कन्वर्ट होती है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे मोर फ्रिक्शन जो होती है वो जनरेट स्टैटिक फ्रिक्शंस में ही होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द सरफेस। इस तरह से यू ऐसे ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्सर्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रोल ओवर अ सरफेस। अब एक रोलिंग, जैसे आपने टायर को देखा होगा, आप ओपन टायर ले लो और ऐसे ही आप उसके ऊपर फोर्स एप्लीकेबल करो तो वो रोल होते होते एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होता है। आप एक टायर ले लो, यूजलेस टायर लो और उसको आप रोल करो, मींस उसके ऊपर फोर्स एप्लीकेबल करो, है ना, तो क्या देखोगे, आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, है ना, द व्हील व्हिच कैन बी रन फ्रॉम अ सम डिस्टेंस, वो जो व्हील होते हैं वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस, रोलिंग फ्रिक्शन इज क्या होगा, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। एंड स्टैटिक, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन होगा वो सबसे जो मिनिमम फ्रिक्शन होता है, कम फ्रिक्शन होती है, वो कहां पे होती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में होती है, देन आफ्टर स्लाइडिंग में होती है, एंड लास्ट वन इज स्टैटिक। अगर यहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा है कि विच वन हैव कंटेन द लास्ट फ्रिक्शंस, तो आपका आंसर होगा स्टैटिक फ्रिक्शंस के अंदर फ्रिक्शन मैक्सिमम होते हैं, देन आफ्टर स्लाइडिंग के बाद, देन आफ्टर रोलिंग। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये चीज ध्यान रखोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस में किस तरह से होती है, रोलिंग फ्रिक्शन में किस तरह से वर्क कर रहा है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस वन इज स्टैटिक। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। अब एग्जांपल देख लो। फर्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि अ मैन व्हिच इज स्टैंडिंग, अ मैन व्हिच इज स्टैंड एंड अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ
particular object. A man which is applying a force on a particular object. एक man है जो एक particular object के ऊपर force applicable कर रहा है, and already this object which is in rest, वो जो object है already rest के position में है. तो हमने क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के पोजीशंस में और वहां पे अगर फोर्स एप्लीकेबल कर रहे हो आप, any object which is already be in the rest positions, and whenever you will be applying a force on it, and the moment of this object can be seen. कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट के पोजीशन में वहां पे आप फोर्स एप्लीकेबल कर रहे हो और वो चीज आपको फोर्स एप्लीकेबल करने के बाद वर्क डन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. अब देखो वहां पे तो मोर फ्रिक्शंस कहां पे हो रही है? स्लाइडिंग में. देन व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शंस? देख रहे हो, बहुत इजी है. एक चाइल्ड है जो एक शॉप पे आराम से वो वहां से क्या कर रहे, स्लाइड कर रहे है ना. थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शंस, भी आप देख पा रहे हो. तो ये दीज आर द जो टाइप्स हमने पढ़ा वो हमने वन बाय वन एग्जांपल्स में भी यहां पे सीन किया. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शंस इज समटाइम यूजफुल. फ्रिक्शन कभी कभी बहुत यूजफुल होता है. किस तरह से? फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज. हमारे बहुत सारे ऐसे डेली एक्टिविटीज होते हैं जहां पे फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट होता है. फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड. आप जब भी रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हो, whenever you are traveling on the roads, तो what you have been seen in this situation कि फ्रिक्शन which is generate from your ground and the foots. हम फीट और हमारे ग्राउंड के बीच एक फ्रिक्शन जनरेट होता है. क्या होगा? फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड. फ्रिक्शन क्या होगा? फीट और ग्राउंड के बीच एक फ्रिक्शन जनरेट होता है. एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड. और वो चीज अपने को हेल्प करता है कहां पे? ग्राउंड पे वॉकिंग करने के लिए. अगर हमारे फीट और रोड के बीच, दोनों के सरफेस के बीच अगर फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो तो इट इज नॉट बी पॉसिबल टू बी वॉक और स्टैंड ऑन द रोड. वो चीज पॉसिबल नहीं होता. सेकेंड वन इज फ्रिक्शन बिटवीन, तो देख लिया, इफ इट इज पॉसिबल टू राइट विद अ पेन, अ पेंसिल ऑन अ पेपर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. एनीथिंग विच इज राइटिंग, अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे राइट कर रहे हैं एनीथिंग, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये भी फ्रिक्शन का ही रोल्स है. इट इज पॉसिबल टू राइट विद अ पेन or a pencil on a papers due to frictions. When we are going to be write anything which is on the board, है ना, तो due to the friction. It is a great role of frictions. तो वहां पे frictions की रोल होती है. It is possible to write on a blackboard due to friction between the chalk and blackboard. If anyone can write anything on a board with a chalk, so there is also will be generate a friction. Now let's frictions between the tires and roads helps automobiles to move on roads. And others examples, friction between the tire and the roads. टायर्स और रोड्स के बीच भी फ्रिक्शंस होती है. दैट्स व्हाई ऑटोमोबाइल्स टू मूव ऑन द रोड्स, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं वो इज इजीली मूव ऑन द रोड्स ड्यू टू द फ्रिक्शन व्हिच कैन बी जनरेट फ्रॉम द रोड्स एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स. फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. ब्रिक्स भी वहां पे होती है, तो ब्रिक्स से भी फ्रिक्शन जनरेट होता है जिससे एक बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती है. तो ये चीज भी, सारी चीजें वहां पे हमने देखा. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. अब वहां पे एक एग्जांपल्स आपके सामने सीधा दिख रहा होगा कि इफ यू आर होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड्स, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे हो हैंड में, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ये ऑब्वियसली कि वो भी एक फ्रिक्शन का ही रोल होता है. अगर इफ यू विल टेक अ ग्लास विथ योर हैंड्स, अगर आपने अपने हैंड में एक ग्लास को पकड़ के रखे हो तो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग ऑन योर बोर्ड, अगर आप बोर्ड पे कुछ अगर राइट कर रहे हो तो ड्यू टू फ्रिक्शन. यस, दीज आर द एग्जांपल्स how the friction which can be useful for your, how the frictions can be useful for us. So these are the example we have been seen on the screen. First one is whenever we are holding any object with our hands due to friction. Second one is if we are writing anything on a board, so there is friction which can be generated with a chalk or a board. When walking on the roads, in this condition also friction can be generated with foot and roads. Whenever writing anything with a paper, with a pen on a papers, so there is also will be a generator friction between the pen and the books. When automobiles which can be run on the roads, in this situation also the frictions can be generated with a tire and the road. So these are the basic examples how the frictions can be useful for us. Now next, friction sometime undesirable. How it is? Yes, it is a big questions there कि how the friction is sometimes undesirable. Yes, soles of shoes wear due to friction. Soles, अब soles अपने you happen things anyways कि जो soles होते हैं, है ना, शूज के अंदर वो क्यों जनरेट किया होता है, क्यों दी होती है? ड्यू टू द फ्रिक्शंस करने के लिए. तो सोल्स ऑफ शूज जो होती है वियर टू ड्यू टू फ्रिक्शंस. टायर ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. वहां पे फ्रिक्शंस को जनरेट करने के लिए. स्टेप अप स्टेयरकेस एंड फुट्स ओवर ब्रिज इन रेलवे स्टेशन वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. नाइफ्स एंड रेजर
lose their soft edge due to friction. So these are the undesirable things which are frictions. Now increasing frictions, how the frictions can be increased? Friction can be increased by increasing the roughness of the surface in contact. जितना ज्यादा roughness होगा surface का contact, friction उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना? अब friction क्या है? Frictions can be increased by increasing the roughness of the surface in contact. जैसे roughness of surface of the contact बढ़ेगा तो friction वहां पे बढ़ जाता है, increase होता है. Example देखो, the soles of shoes are good to have better grip on a floor. अगर soles जो होती है शूज का are grouped to have better grip on the floor, क्योंकि फ्लोर पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वहां पे सोल्स की अरेंजमेंट की जाती है. द टायर जो होता है व्हीकल्स का, थ्रेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑफ द रोड्स. द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स, जिम्नास्टिक अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस देयर, हैंड्स फॉर अ बेटर ग्रिप. तो ये सब सारे जो हैंड्स पहनते हैं क्यों? क्योंकि बेटर ग्रिप के लिए. ब्रेक क्या होगा? ओके, उसकी फ्रिक्शंस बढ़ेगी, है ना? तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स हाउ द फ्रिक्शंस कैन बी इंक्रीज. ये सारे एग्जांपल्स इसलिए यहां पे क्रिएट करती है क्योंकि फ्रिक्शंस को इंक्रीज करने के लिए. नाउ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हाउ द फ्रिक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड. नाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट. अगर आप ग्रीस की लुब्रिकेंट का अगर यूज कर रहे हो, वहां पे पाउडर्स का यूज कर रहे हो, ऑयल का यूज कर रहे हो, ग्रीस का यूज कर रहे हो, तो वहां से फ्रिक्शंस क्या होती है? लेस हो जाती है. यूजिंग रोलर्स और व्हील्स, अगर आपने रोलर्स को व्हील्स को यूज किया तो वहां से फ्रिक्शंस भी लेस हो जाएगी. यूजिंग बॉल बेयरिंग का यूज कर रहे हो तो फ्रिक्शंस कम हो जाती है वहां पे. स्प्रिंकलर पाउडर का यूज कर रहे हो, जो हम लोग देखते हैं कैरम बोर्ड पे यूज करते हैं, तो वहां से भी फ्रिक्शन हमारी लेस हो जाती है. ऑयल एंड ग्रीस इज अप्लाइड, ऑयल और ग्रीस को अगर हम अप्लाइड कर रहे हैं बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, कोई अगर मूविंग पार्ट्स है मशीन का, वहां भी फ्रिक्शन होती है. रोलर्स आर यूज इन लगेज बैग्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन. रोलर्स का भी यूज किया जाता है कहां पे? लगेज में, है ना, जिससे बैग्स का क्यों रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाए. व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स रिड्यूस फ्रिक्शंस. तो यहां पे एग्जांपल है कि व्हील्स आर यूज्ड, तो व्हील्स का भी यूज करते हैं कहां पे? व्हीकल्स में. क्यों? क्योंकि रिड्यूस करे फ्रिक्शंस को. बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन, अब बॉल बेयरिंग का यूज करते, बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन सेलिंग फैन, है ना, bicycle and vehicles to reduce friction. So these all are the points which is helpful for how the frictions can be reduced. Now next one is fluid frictions. Now next one is fluid frictions, and what do we understand about the fluid frictions? Fluid friction is the force of friction exerted by liquid and gaseous. The frictions can be exerted by liquids and gaseous on object moving through them, है ना? What you will understand in this situation? Fluid friction is the force of friction. Fluid friction वो फ्रिक्शन फोर्स है exerted by liquid and gases, जो कहां पे? लिक्विड में और गैसेस में जनरेट होता हो ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम, वहां पे मूविंग करने की वजह से. फ्लूइड फ्रिक्शंस डिपेंड ऑन, फ्लूइड फ्रिक्शंस कहां पे डिपेंड करते हैं? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. Where it is depend on? These are depend on the speed of the object. Where it is depend on? Speed of the object, shape of the object, and the nature of the fluid, either solid or a liquid. So the speed of the object, shape of the objects, the nature of the fluid. So fluid frictions. So what do you understand about meaning of fluid friction? Fluid friction is the force of friction exerted by liquids and gases on object moving through them. Fluid friction depend on, fluid friction कहां पे depend कर रहे हैं? तो the speed of the object, shape of the object, the nature of the fluid. Example, birds flying in air have a streamlined body to reduce fluid friction. वहां पे क्या होता है? fluid friction वहां पे reduce कर रहा होता है. Fishes living in waters have a streamlined body to reduce fluid frictions. Aeroplanes and spacecraft have a streamlined body due to reduce fluid friction. तो these are the example. तो fluid friction का मतलब क्या होता है? Fluid friction is the force of friction exerted by liquid and gaseous. जहां पे liquid और gaseous के बीच में जो force of friction generate होता हो, that is known as fluid friction. Is the force of friction exerted by liquid and gases on an object moving through them. कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे लिक्विड से या गैसेस से अगर मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होता है दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. अब यहाँ पे वो कहां पे डिपेंड करते हैं तो समझ में आ गया होगा. एन ऑब्जेक्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन मींस व्हाट्स? एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज moving in a liquid or a gaseous, any and on a such object frictions can be applied. कोई भी ऑब्जेक्ट जो लिक्विड में या गैसियस में मूव कर रहा होता है और उसके ऊपर जो कोई फोर्स एप्लीकेबल होता है, दैट उसके ऊपर जो कोई भी फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, एंड दिस फ्रिक्शन व्हिच इज नोन एज द फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड. ये तीन चीजों पर डिपेंड होता है. द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड. फर्स्ट है बर्ड फ्लाइंग कर रहे हैं
तो उसके स्ट्रीमलाइन सेफ है, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पा रहे हैं वहां पे. Fish living in a waters have a streamlined body to reduce a fluid friction. Aeroplane and a spacecraft have a streamlined body due to reducing friction. So these are the known as fluid friction. And now let us see the examples. Fish, aeroplane, spacecrafts and birds. So these are the examples of the fluid frictions. Now it is very easy to see that these are the example of the fluid frictions. आप आसानी से इसके एग्जांपल्स को वहां पे देख पा रहे हो कि फ्लूइड फ्रिक्शंस के एग्जांपल्स हमने किस तरह से लोकेट किया है, ठीक है ना. तो these are the whole description of this chapters and now we have understand about the each and everything, है ना, which is be discussed about the frictions and how the questions can be arise in a different levels, how the sliding frictions work, rolling, static, fluid frictions, है ना. This is a very important topics. I think you will be understand in a better ways. Okay, thank you.